प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। जय मसीह। हम स्तुति और आराधना में बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। Why don't we all bow our heads and praise the holy name of our Lord together. Heavenly Father, once again I thank you, O Lord, for this amazing time that you have given us, O Lord God. Lord, you alone deserve all glory and all honor, Master, and we thank you, O Lord God. Once again in your presence, O Lord God, you have enabled us that we could worship and lift your holy name. Once again, I thank you, O Lord God, for this time, O Lord God. Lord God, we give the whole service in your hand, O Lord God. You enable us that we lead and you enable us that we do perfectly, O Lord God, whatever you want us to do, O Lord God. Let your leading and your guidance be there with us, O Lord God. I pray and I ask all this in your powerful and perfect name, Lord Jesus. फिर से सभी को जय मसीह। जय मसीह। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है इन Psalms 145 that we will speak of your glory and majesty and I will meditate on your wonderful deeds. People will speak of your mighty deeds and I will proclaim your greatness. For our God is good to everyone and has compassion in all that he made. That is the wonderful thing of our God. That being so mighty, being so powerful, our God is still compassion and He loves us. He loves you and me. परमेश्वर इतना शक्तिशाली होते हुए भी वो हम पर दया करता है और हमसे वो प्रेम करता है। तो क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करें इस गीतों के द्वारा। Why don't we sing this song, Great and Mighty? शक्तिशाली हाथों से बनाया है महान प्रभु, तूने स्वर्ग पृथ्वी अपनी शक्तिशाली बाहों से बनाया। कोई असंभव नहीं, कोई असंभव नहीं, है शक्तिशाली प्रभु, बुद्धिमान और कार्य में महान। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कोई असंभव नहीं। है महान प्रभु, तूने स्वर्ग और पृथ्वी अपनी शक्तिशाली हाथों से बनाया।
will be nothing. Nothing is too difficult for thee. Nothing, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for thee. गिर अब तालियों का पेट हमारे महान परमेश्वर को इस लोग को you are the mighty God. There is no one like you. You want to glorify, you want to magnify your name. For truly, O Lord, you are an awesome God and one God. And we thank you, O Lord, for your goodness, your love, O Lord. Which is always there with us, O Lord God. It's our privilege, O Lord God, to worship you, O Lord God. Thank you so much. ये दुआ करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे साथ हैं, ओ प्रभु जी, इसके परमेश्वर। कोई प्रभु जी, शक्तिशाली महान परमेश्वर होते हुए भी प्रभु जी हम पर दया करता है। तेरे धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। यीशु लॉर्ड को हम thank you, Lord, thank you, Lord. Fill us with your power, your might, Lord God. We want to glorify your name. We want to glorify your name. Praise the Lord, my soul. My Lord, my God, how great you are. You are clothed with majesty and glory. You cover yourself with light. You have spread out the heavens like a tent and build your home on the water above. You use the cloud as your chariot and ride on the wings of the wind. You use the wind as your messenger and flash of lightning as your servant. You have set the earth firmly on its foundation, and it will never be moved. You placed the ocean over it like a robe, and the waters covered the mountain. That is our God, who is so majestic, who is so mighty, and that God is with us. Why don't we glorify His name? क्यों ना उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें इस गीतों के साथ। पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। पिता परमेश्वर तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा
Lord and God, you are worthy to receive glory, honor, and power. For you created all things, and by your will they will be given existence and life. This is the promise of our God. This is the word of our God. परमेश्वर ने हमें जान दिया है, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक महान परमेश्वर है. अपने शब्दों के द्वारा वो हमें रचता है. That's the might of our God, and we come together in splendor of His holiness and worship Him. क्यों ना एक साथ मिलकर उस महान परमेश्वर की हम आराधना करें. Why don't we come in front of Him, bow down before Him and sing this song? क्यों ना अपने हाथों को उठाकर उस महान परमेश्वर के लिए हम ये गीत गाएं. Why don't we lift up His holy name by singing this song together? उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आते करते हैं तुझसे प्रार्थना. उठाते हैं तेरा नाम,
much, O Lord God, once again for this time, O Master. You alone deserve all the glory, O Lord God. Lord, you being so powerful, प्रभु जी तू इतना महान शक्तिशाली होते हुए भी परमेश्वर तू हम मनुष्य के बारे में सोचता है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. Thank you, O Lord God. Lord God, we want to be an instrument, O Lord God. We want to be that instrument, O Lord God, who would only glorify, who would only work as per your will and your ways, O Lord God. Make us like you, O Lord God. Make us like you. We ask this in your name, Lord Jesus Christ. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands to your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands to your name. I sing you a love song of worship. I lift up my hands to your name. I sing you a love song of worship. I lift up my hands to your name. All glory and honor to Jesus forever. I lift up my hands to your name. All glory and honor to Jesus forever. I lift up my hands to your name. Lord, make me an instrument of worship. I lift up my hands to your name. Make me an instrument of worship. I lift up my hands to your name. Lord God, Jesus. Once again, O Lord, I thank you, O Lord God. Truly, O Lord God, we want to be that instrument. हाँ परमेश्वर. Yes, O Lord God. Once again, I thank you, O Lord. हाँ प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी फिर से इस समय के लिए प्रभु जी. हमें ये विश्वास है प्रभु जी कि तूने इस भेंट को स्वीकारा है प्रभु जी. फिर से प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हम सभी को प्रभु जी संभाल के रखे हैं प्रभु जी. इस कोविड सिचुएशन, इस कोरोना के बीच में प्रभु जी आपने हम सभी को प्रभु जी बचाए रखे हैं प्रभु जी. हम सभी को सुरक्षित रखे हैं प्रभु जी. इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रभु जी. हम चाहते हैं परमेश्वर इस लॉकडाउन के टाइम में भी प्रभु जी आप प्रभु जी सदा हमारे साथ रहे प्रभु जी. और तुझ में हमें और आगे बढ़ने में तू मदद कर प्रभु जी. फिर से धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी सभी चीजों के लिए जो आप हमारे जीवन में करते हैं प्रभु जी. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे और पवित्र नाम से हम मांगते हैं. आमीन. फिर से जय मसीह सभी को. जय मसीह. अभी ये भेंट का समय है, तो क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के सबसे उत्तम भेंट दे, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक देने वाला परमेश्वर है और वो चाहते हैं कि हम उसके चेले भी देने वाले बने उनके जैसा. तो क्यों ना हम हमारे परमेश्वर के राज के लिए उत्तम भेंट दे. क्यों ना उस भेंट के द्वारा हम ये गीत गाए. आओ मिलके स्तुति करेंगे. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. कोई राजा ओ मसीहा मेरे जीवन का सहारा. कोई राजा ओ मसीहा मेरे जीवन का सहारा. नाचेंगे गाएंगे तुम जानेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. नाचेंगे गाएंगे तुम जानेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे. जय मसीह सभी को. आइए ये समय हम सभी प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए. प्रभु आपने हमें स्तुति आराधना में चला है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ. हम सभी ने प्रभु अपने अपने घरों से प्रभु आपको जो स्तुति आराधना की भेंट को दिया है प्रभु,
मेरा विश्वास है आपने हमारी इस भेंट को स्वीकार किया है प्रभु। उसी तरह प्रभु हमारे भाई बहनों ने प्रभु अपने अपने घरों में प्रभु जो आपके राज्य के लिए प्रभु जो भेंट को दिया है प्रभु, देने वाले हर एक हाथों को प्रभु आप आशीषित कर प्रभु, उनके हर एक जरूरत को पूरी कर प्रभु। जो लोग नहीं दे सके हैं प्रभु, आप उनकी परिस्थिति को जानते हैं प्रभु, आप ले प्रभु, उनकी हर एक जरूरत को आप पूरी कर प्रभु, और उन्हें हर एक समस्या से आप छुटकारा दे प्रभु। इन प्रभु कई महीनों से प्रभु हम जो लॉकडाउन की परिस्थिति में है प्रभु, हर एक समस्या का सामना कर रहे हैं प्रभु, हर एक लोग प्रभु जो बीमार में है प्रभु, उन सभी को प्रभु मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीर में उंडेल दे प्रभु, और आप उन्हें चंगाई से भर दे प्रभु। कई सारे प्रभु जो हमारे भाई बहन हैं, उनके प्रभु जो जॉब चले गए हैं, उनके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उन्हें एक अच्छा जॉब मिलने के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता कर, मदद कर। आप प्रभु उनकी हर एक जरूरत को पूरी कर प्रभु। और मैं याद करता हूँ प्रभु हमारे प्रभु हर एक प्रभु जो बुजुर्ग व्यक्तियों को प्रभु जो इस समय अपने अपने परिवारों के साथ है प्रभु, उन सभी को प्रभु विशेष करके आपके सामर्थ्य से भर दे प्रभु। उन्हें प्रभु आप अच्छी सेहत दे और उन्हें कुछ भी प्रभु तकलीफ ना होने दे प्रभु। मैं मांगता हूँ प्रभु इन कई महीनों से प्रभु हम जो तकलीफ से होकर गुजर रहे प्रभु, कई सारे लोग प्रभु चिंता में है प्रभु और प्रभु निराशा में है। मैं मांगता हूँ प्रभु आप प्रभु हमारे हर एक चिंताओं को निकालने वाले परमेश्वर हैं, हमें शांति से भरने वाले परमेश्वर हैं। और मैं मांगता हूँ प्रभु हमारे प्रभु हर एक जो भी प्रभु तकलीफ है प्रभु, उस हर एक तकलीफ से प्रभु आप हमें प्रभु छुटकारा दे प्रभु। और प्रभु इस परिस्थिति से प्रभु हमें बाहर निकलने के लिए सहायता कर, मदद कर प्रभु। आज प्रभु सारा जगत प्रभु इस कोरोना वायरस की महामारी से प्रभु पीड़ित है प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ पवित्र परमेश्वर, आप प्रभु आप अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु, और आप ले पवित्र परमेश्वर इस महामारी को प्रभु आप जल्द से जल्द इस संसार से निकाल दे प्रभु, और हमें प्रभु इस महामारी से मुक्त कर प्रभु। आप ही प्रभु आपकी दया को प्रभु हम सभी के ऊपर उंडेल दे प्रभु। हजारों लाखों लोग प्रभु जो आज हॉस्पिटल्स में भर्ती हैं, उनका जो इलाज चालू है प्रभु, आप उन्हें प्रभु चंगाई दे प्रभु। जो भी उन्हें दवा गोली दे रहे हैं प्रभु, आप उसमें आपके सामर्थ्य को उंडेल दें, और आपकी उपस्थिति प्रभु हर एक उस डॉक्टर नर्स हॉस्पिटल स्टाफ के लोगों के साथ रख प्रभु, जो दिन रात प्रभु लोगों की सेवा कर रहे हैं प्रभु। आपसे मैं प्रभु विनती करता हूँ प्रभु, आप ही प्रभु हमें प्रभु इस समस्या से बाहर निकाल, और आपकी उपस्थिति सदा सर्वदा प्रभु आप हमारे साथ प्रभु रख प्रभु। मैं प्रभु मांगता हूँ आगे का समय प्रभु जैसे हमारे वरिष्ठ अगुवे प्रभु वचन लेकर आएंगे प्रभु, उस वचन के जरिए प्रभु आप हमसे बातें कर, उस वचन को प्रभु समझने के लिए प्रभु आप हमें बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, और हमारा ध्यान उस वचन की ओर लगाने के लिए सहायता कर, मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Praise the Lord, Church. जय मसीह कलीसिया। What a wonderful joy again to be with all of you and to worship God together. फिर से एक बार हमें बहुत खुशी है, हम एक साथ फिर से आ सके, परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सके। Today, in a sense, we have kind of completed over 6 months of being in lockdown because of COVID-19. आज करीबन 6 महीना हम लोग समाप्त करते हैं जो कोविड-19 के घर के अंदर रहते हुए। And for many of you, it has been different kind of experiences. और हम में से बहुत को मुझे लगता है कि अलग अलग तरीके का जो एक्सपीरियंस हुआ है। I hope they have been good experiences that have been part of your life, along with those other bad experiences that are there. और मेरा पूरा विश्वास है ये अच्छा अनुभव रहा होगा और शायद कुछ बुरा भी रहा होगा। Most of us are not used to being stuck inside the house. हमें से बहुत से लोगों को ये आदत नहीं है कि घर के अंदर ही रहे। But this has been a situation where we've had no options. और ये ऐसा समय रहा जब कि हमें कोई इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। But my hope and prayer is that many of you have drawn closer to the Lord during this 6 months. और मेरी ये विश्वास और प्रार्थना है कि आप में से बहुत से लोग परमेश्वर के और के करीब आ चुके हैं। Because there are so many who normally do not have time to give to God. और क्योंकि बहुत से लोगों को जो कि हमें समय नहीं है परमेश्वर के साथ बिताने के लिए। And this is a period when we have had a lot of time. और ये समय जबकि हमें बहुत मिला है ताकि हम परमेश्वर के साथ बिता सके। And I hope your
the time that you spend in reading the word and the time you spend in praying, I'm sure that would have increased. और मेरा विश्वास है जिस तरह से आपने परमेश्वर के साथ समय बिताया, उसके वचन का अध्ययन करते हुए, प्रार्थना करते हुए, और आप परमेश्वर के नजदीक आ सके। There have been many negatives during the last 6 months. और कुछ नकारात्मक बातें भी रही है 6 महीने में। But I hope there have been some of these good positives which has encouraged you spiritually. और मेरा विश्वास है ऐसा कुछ अच्छी बातें जो हमें और उत्साहित किया परमेश्वर के साथ चलने के So लिए। it is good for us once again to be together with you all. और फिर से एक बार आपके साथ आने के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। Today is the first Sunday in October. और अक्टूबर महीना के पहला रविवार है। Normally we would have all come together and worshipped and participated in the Lord's table together. और साधारण तरीके से हम सब लोग शायद इकट्ठे आए होते पहला रविवार को और प्रभु भोज में शामिलित हुए होते। We are hoping that we will be able to do that soon. और हमारा विश्वास है बहुत ही जल्दी हम वो कर सकेंगे। So it's another month that we are getting into. और एक नए महीने में हम लोग पदार्पण कर रहे हैं। And as we continue to live our life, we need to understand that the more time that we spend on this earth, the closer we are coming to spending time with God. और हमें ये विश्वास रहना है कि और जैसे और एक नया महीने में हम आ रहे हैं, जितना ज़्यादा परमेश्वर के साथ हम बिताते हैं और उतना ही उनके करीब हम आ सकते हैं। So as we go through this month, I pray that the Lord would be with you and the Lord would help you. और इस महीने में जैसे हम आते हैं, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर आपके साथ रहेंगे और आपको चलाएंगे। Before we go into the word, I have one pleasant reading that I need to do once again. इसके पहले कि हम वचन की ओर जाए, मुझे घोषणा करना है। So I have the marriage banns that I need to read for you all. I, senior minister of the Shalom Evangelical Church, hereby announce that a member of our church, Miss Meena Durpat Singh, member of Shalom Evangelical Church Nepali congregation, and daughter of Mr. Durpat Singh and Mrs. Seema Singh, has given me the notice of her intention to get married to Mr. Surjaba Purna Bahadur Thapa, son of Mr. Purna Bahadur Thapa and Mrs. Shalini Thapa, who is a member of the Abundant Life Assemblies, Bandra. Anyone who has an objection for this proposed marriage by any reason as to why these two shall not be united in matrimony by reason of ethical, moral or legal account, it should be brought to the notice of the senior pastor of Shalom Evangelical Church in writing without delay. Those who do not do it in time shall remain silent ever after. For it is written, whom God has put together, let no man separate. This is the second ban's marriage. विवाह बैन। मैं शालोम इवेंजेलिकल कलीसिया की वरिष्ठ पास्टर यह घोषित करता हूँ कि हमारे कलीसिया के सदस्य कुमारी मीना दुर्पत सिंह जो कि पुत्री है श्रीमान दुर्पत सिंह और श्रीमती सीमा सिंह के नेपाली कलीसिया के सदस्य है, उन्होंने हमें यह सूचित किया कि वह विवाह करना चाहते हैं श्रीमान सुरजीवो पूर्णा बहादुर थापा जो कि श्रीमान पूर्णा बहादुर थापा और श्रीमती शालिनी थापा के पुत्र हैं और वे अबंडेंट लाइफ असेंबलीज के सदस्य है। अगर किसी को भी इस विवाह में कोई भी उपयुक्त कारण पता हो नैतिक कानूनी रूप से, तो वह शालोम के वरिष्ठ पास्टर को लिखित रूप से व्यक्तिगत रीति से और समय में ही बता दीजिएगा। जो कोई समय रहते हुए इसे नहीं बताते वह हमेशा के लिए शांत रहे, क्योंकि वचन में लिखा है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई भी अलग न कर सके। यह दूसरी घोषणा है। I'm going to ask at this time if Meena and your parents, both of the three of you can stand up. We're going to pray for you. और मैं विनती करूंगा कि मीना और उनके परिवार उनके माता पिता खड़े रहे और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें।
Our Father God, we thank you once again for Meena and for her life. पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते मीना और उसके जीवन के लिए, And thank you for the years that she spent with her family. और उन सारे वर्षों के लिए जो उन्होंने माता पिता के घर में व्यतीत किया है. And Lord, you have prepared her over the years to be a wife and to be part of a separate nuclear family. प्रभु जी, आपने उसे गढ़ा है, बनाया है इन सालों में, ताकि वो दूसरे फैमिली के एक अंश बन सके और एक परिवार नया निर्माण कर सके. And we thank you for bringing Suraj into her life. हम धन्यवाद देते सूरज को उसके जीवन में लाने के लिए. And now as they prepare themselves for marriage, we commit both of them into your hands. और अब जब दोनों शादी की तैयारी करते हैं, प्रभु हम दोनों को आपके हाथों में देते हैं. We pray, Lord, that this time would be a time of preparing and getting ready for what they have in the days to come. और हमारी यही प्रार्थना है, इन दिनों में जब वे तैयारी करते हैं तो उस बड़े दिन के, शादी के दिन के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें. We pray, Lord, that as they read your word, they would receive from you scriptures that will help them to be ready for what you have for them. हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जब वो आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके साथ समय बिताते हैं, तो आप उन्हें उनकी तैयारी करें ताकि अपने मनों को और शरीर की वो तैयार कर सके. So we commit them into your hands. तो उन दोनों को आपके हाथों में देते हैं. We commit the parents also into your उनके hands. परिवार वालों को भी आपके हाथों में देते हैं. And we pray, Lord, that you would prepare them too and bless them also. और प्रार्थना करते हो उन्हें भी आप तैयार करिए, उन्हें भी आशीष दीजिए. And as the date of the wedding comes closer, our prayer is that, Lord, your presence would go with them and enable them, Lord, to do what is needful in the right time. और जैसे जैसे उनके शादी के दिन नजदीक आते हैं, प्रार्थना करते हैं आप उन्हें मदद करिए, जो कुछ भी करना है हर एक जरूरत पूरा करिए. So we commit both the families into your तो hands. दोनों परिवारों को हम आपके हाथों में देते हैं. Especially commit Meena and Suraj into your hands. और विशेषकर मीना और सूरज को आपके हाथों में देते हैं. We thank you for hearing our prayers. धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, Because we pray this in Jesus' name. क्योंकि ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. Amen. आमीन. Over the year, since we had chosen a theme for this year as godly living, over the year we have seen several teaching from scripture related to godly living. जब से हमने कि ईश्वरीय जीवन जीना उसके बारे में हमने चुना है, और हम काफी ऐसे बातों को सीखा है. And from the scriptures we've learned what it means to live a godly life. और वचन से हमने सीखा है कि ईश्वरीय जीवन जीने के लिए हमें क्या करना है. What I want us to look at today is attached with that. और आज जो हम सीखना जा रहे थे उसी के संदर्भ में सीखेंगे. What I want us to look at is what I've written here as responding to God. और आज जो मैंने हम सीखने के लिए चुने हैं, और वो यही है कि परमेश्वर के उस ईश्वरीय जीवन जीने के जवाब हम किस तरह से दे सकते हैं. So God has prepared us to live godly lives. तो परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम ईश्वरीय जीवन जिए. What I want us to look at this morning is how do we live that life? What do we do? और उस ईश्वरीय जीवन को जीने के लिए हम किस तरह से जी सकते हैं, और उसके लिए क्या करना है हमें. So what I have for us this morning is seeing what needs to be done and doing it. और आज सुबह हम यही सीखेंगे कि क्या उसे हमें देखना है और किस तरह उसके लिए हमें प्रस्तुत होना है. I want us to start with one scripture. और हम एक वचन की ओर देखेंगे. Colossians chapter 3. कुलुस्सियों के 3 अध्याय, And we'll read verse 23. और उसका 23 वचन हम पढ़ेंगे. Colossians chapter 3 verse 23. I'll read that here. It says, whatever your task, work heartily as serving the Lord and not men.
और जो कुछ भी तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। So let's bow our heads as we listen to God's word. तो आइए हम अपने सरों को झुकाए परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले। Our Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। Thank you for teaching us from your word again and again. धन्यवाद देते आपके वचन से बार बार आप हमें सिखाते हैं। Today, as we learn how to live a godly life and what we need to do, help us and speak to us. और आज जब हम सीखते हैं कि इस ईश्वरीय जीवन को जीने के लिए हमें क्या करना है, प्रभु जी हमें आप मदद करिए। As we look at your word now, we pray that you would open our minds to receive your word. जैसे हम आपके वचन की ओर देखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे बुद्धि को खोलिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें। We ask for the Spirit of the Lord to teach us again this morning. हम प्रार्थना करते पवित्र आत्मा हमें आप सिखाइए। And we pray, Lord, that you would speak to us in such a way that we will know what we need to do when we are faced with different situations in life. और हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जो जिंदगी के मोड़ पे हम अलग अलग परिस्थिति में आते हैं, तो आप हमें सिखाइए किस तरह से हम आपके वचन में चल सके। So we commit this time ahead into your hands. तो इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं। You teach us, Lord. आप हमें सिखाइए। Bless us with your word. आपके वचन से हमें आशीषित करिए। Pray this in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। As we look at this teaching, I want us to turn in our Bibles to the book of Nehemiah. इस विषय को सीखने के लिए हम आपको कहेंगे कि नहमाया की पुस्तक की ओर हम बढ़े। Now, Nehemiah's book is a fascinating book, lot of things to learn. नहमाया का पुस्तक जो कि बहुत ही अद्भुत किताब है, बहुत सी चीजें हम उससे सीख सकते हैं। We have limited time, so we will learn few lessons that we can this morning. और हमारे पास उतना समय नहीं है, हम कुछ ही उस विषय में इस वचन से सीखेंगे। The scripture we read said that whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. वचन में ऐसे लिखा है, जो कुछ भी तुम करो पूरी मन से करो, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं परंतु परमेश्वर को दिखाने के लिए। Do whatever, when you're doing anything, it should come from within you. That is what the scripture is saying. जो कुछ भी हम करेंगे वो परमेश्वर के लिए अपने हृदय से करना चाहिए। And that is what we want to learn this morning. और वही हम आज सीखना चाहते हैं। So turn with me to the first chapter in Nehemiah. और हमारे साथ नहमाया की पुस्तक की ओर बढ़ेंगे। The first thing I want us to look at is that Nehemiah hears about the walls at Jerusalem. पहला बात मैं यही कहना चाहते हैं, नहमाया जो यरूशलेम के दीवार के बारे में सुनता है। We will read Nehemiah chapter 1 verses 1 to 7. नहमाया के उसका पहला अध्याय 1 से 7 वचन तक हम पढ़ेंगे। हल्काया के पुत्र नहमाया के वचन। 20वें वर्ष के किस्लवे नाम महीने में, जब मैं शुशन नाम रायगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदी के विषय में बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहापना टूटी हुई और उनके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय
अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है। तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता हूँ उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे उनका हम नहीं माना। Now, Nehemiah was one of those who had been taken in exile. और नेहमा उन लोगों में से थे जो उनको बंधुआई में लेके गए थे। And at that particular time, he was working, he was serving the king, working for the king in the palace. और उस समय वो राजा के लिए राजा के दरबार में काम कर रहा था। Now, though he was in bondage, he was in exile. चूंकि वो बंधुआई में था और उनको दूसरे देश में ले गया था, Yet he was in a comfortable position फिर भी वो अच्छा आरामदायी जीवन जी रहा था। because he was working in the palace, he was working for the king. क्योंकि वो राज दरबार में और राजा के लिए काम कर रहा था। And so, in a sense, his life was still good. और एक तरह से उसका जीवन अच्छा चल रहा था। But the scriptures tell us, even right from the beginning, that when some people came from Jerusalem, his brothers and others, when they came, the first question he asked them is about how are the things in Jerusalem. परंतु हम यहाँ देखते हैं जब कुछ लोग यरूशलेम से आते हैं और कुछ उसके भाई यहूदी भाई जब यरूशलेम से आते हैं तो सबसे पहले नहमयाह यरूशलेम के बारे में खोज खबर लेता है। And this is the answer he gets in verse 3. और वचन 3 में यही उत्तर उसको मिलता है। They said to me, the survivors there in the province who escaped exile are in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down and its gates are destroyed by fire. और वचन 3 में लिखा है, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। So what he hears is that things are not very good in Jerusalem. और वो यही सुनता है कि यरूशलेम में सब कुछ अच्छा नहीं है। The city is in ruins. शहर जो टूटा फूटा है। The walls are broken down. उसके जो दीवारें हैं वो टूट चुकी है। The gates have been burned down. उसके जो फाटकें हैं वो जल चुकी है। And things are not very good. और यरूशलेम की व्यवस्था कुछ अच्छा नहीं है। And Nehemiah grieved about it. और नहमयाह ये सब कुछ सुनकर उसे बहुत दुख होता है। He sat down, he wept and he mourned, it says here, for days. और ये बातें सुनते ही वो वहाँ बैठा और विलाप करने लगा, रोने लगा काफी दिन तक। Verse 4 is where we read that. और चौथा वचन में हम ये पढ़ते हैं। When I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. और ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। Now, Nehemiah, it says he sat down, he wept and he mourned for many days. और नहमयाह वहाँ वो बैठा विलाप किया और काफी दिन तक वो रोते रहा। But that's not where he stopped. और वही तक वो चुप नहीं रहा। He did something else which was more important. और उससे भी बढ़कर उसने और अगला कदम किया। He says, I continued fasting and praying before the God of heaven. और यहाँ लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने बैठकर उपास और प्रार्थना करते रहा। And we read the prayer and he said, O Lord God of heaven, the great and terrible God who keeps covenant and steadfast love with those
who love Him and keep His commandments, and he goes on to pray the whole prayer. और हम उसकी प्रार्थना को भी याद करते हैं। वो जहाँ लिखा है, तू कान लगाए और आंखें खोले, जो कि प्रार्थना तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता है, उसे तू सुन ले। Now, we need to learn a big lesson from Nehemiah. Very first lesson that we can learn is right here. और नेहमाया के जीवन से हम एक बड़ी शिक्षा या लेसन सीख सकते हैं उसके जीवन से। So the first lesson I want to share from Nehemiah's life is that when you see something big to be done, ask God for help. और सबसे पहला लेसन हम जो सीखते हैं नेहमाया के जीवन से, जब कुछ भी बड़ा कार्य हम करना चाहते हैं तो वो उसके लिए हमें परमेश्वर से मदद मांगना है। It is okay to be sad and to be sorrowful and to weep and do that for days. और ये ठीक है, हम दुखित हुए और उसके लिए परमेश्वर से रोए, प्रार्थना किए। But we do not stop at weeping and leaving it there. और हम परमेश्वर के सामने रोते विलाप करते ही नहीं रुकते। What Nehemiah did is very important, and we learn this lesson from his life. और नेहमा ने जो कुछ किया है उसके जीवन से हम यही लेसन सीखते हैं। He knew that building up the wall of Jerusalem was a very big task. नेहमाया जानता था कि दीवारों का फिर से पुनर्निर्माण करना ये बहुत बड़ी कार्य है। And he straight goes to the Lord and he prays to और God. वो सब कुछ करने के पहले सबसे पहले परमेश्वर के पास मदद मांगने के लिए प्रार्थना में जाता है। Now, this is the first lesson that I want you to learn. और यही सबसे पहली लेसन हम सीखना चाहिए। In our life, there will be many opportunities or many situations where we will be faced with big things to do. और हमारे जिंदगी में भी हमें बहुत से ऐसे समय आएंगे जो कि हमें बहुत निर्णय लेना पड़ेगा। And at that time, the best thing to do first is to pray. और उस समय उस चुनौती में सबसे पहले हम परमेश्वर से जाके सहायता मांगे, प्रार्थना करें। Now, when you read the book of Nehemiah, जब हम नेहमाया के पुस्तक को पढ़ते हैं, we read at least 8 times Nehemiah prayed. तो हम कम से कम 8 बार नेहमाया ने प्रार्थना किया पढ़ते हैं। When we study the book of Daniel, we read about Daniel praying 3 times a day. और जब हम दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, हम देखते हैं दानियल जो कि 3 बार प्रार्थना करता था। Now, Nehemiah's life was not like that. और नेहमाया का जीवन उस तरह नहीं था। He may have been praying 3 times a day or whatever pattern he followed. और वो हो सकता है शायद 3 बार और जो भी उनके जिंदगी में उसने आदत बना लिया था प्रार्थना के लिए किया होगा। But when we read the book of Nehemiah, we find out that very spontaneously he would pray. और जब हम नेहमा के पुस्तक को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि जैसे ही उसको जरूरत है वो तभी वो प्रार्थना करता है। I'll come back to this a few minutes later. और इसको हम कुछ देर बाद फिर से देखेंगे। But spontaneously, in the book of Nehemiah, there are at least 8 times when Nehemiah spent little time in prayer. और 8 बार हम देखते हैं जब भी नेहमाया को जरूरत था वो परमेश्वर की ओर अपने आंखों को मोड़ता है। Nehemiah prayed at any time. नेहमाया कभी भी कोई भी क्षण परमेश्वर से बातें करता रहा, प्रार्थना करता रहा। Even when he was talking with others. जब वो लोगों से भी बात कर रहा था, He knew that God is always in charge. और वो जानता था कि परमेश्वर हमेशा हमारी इंचार्ज या रखवाला है। He knew that God is always present. वो जानता था कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा है। And he also knew that God hears and answers every prayer. और वो यह भी जानता था परमेश्वर सुनता है और हर एक प्रार्थना का वो उत्तर देता है। So whenever he was faced with a slightly difficult situation,
he prayed. और जब भी कभी उसके जिंदगी के क्षण में मुसीबत आता था वो प्रार्थना करता था. Now Nehemiah could pray confidently through the day because he had established an intimate fellowship with God during times of extended prayer. नेहमाया जो संपूर्ण आत्मविश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था क्योंकि उसने परमेश्वर से एक विकसित अधिक समय बिताता था और वैसा ही रिश्ता परमेश्वर से उसने संबंध किया था. Now, because he had spent long hours in prayer in his life, क्योंकि उसने अधिक समय प्रार्थना में बिताया था परमेश्वर के साथ, it was possible whenever there was a need for him to find an answer, he was able to pray spontaneously. और हो सकता है इसी कारण जब भी उसको जरूरत समझा उसके जीवन में कठिन परिस्थिति में वो परमेश्वर से तत्काल प्रार्थना करता था. So that is why for you and me, we need to get into that habit where we spend extended times in prayer with the Lord. और इसी कारण आपको और हमें भी वैसे ही आदत डालना है जो कि अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताना. So when we do that, when there is a need for spontaneous prayer, we know how to do it and we do it and we get the answers. और जब कभी हम परमेश्वर के साथ अधिक समय बिताते हैं तब जब भी कभी हमें मुसीबत की सामना करना पड़ता है तो हम उसी क्षण परमेश्वर से सहायता मांग सकते हैं. So if we want to reach God with our emergency prayers, अगर हमें परमेश्वर को हमारे किसी इमरजेंसी तत्काल प्रार्थना के लिए परमेश्वर पहुंचना है, we need to take time to cultivate a strong relationship with God through times of in-depth prayer. तो उसी समय हमें परमेश्वर के साथ एक ऐसा विकसित समय बिताना है, ऐसा संबंध करीब का संबंध बिताना है तो ही हम परमेश्वर के साथ और नजदीक का रिश्ता बना सकते हैं. Now that's the first thing that we learn. और वो ही एक पहली बात हम सीखते हैं. First lesson I said, when you see something big to be done, ask God for help. और पहला लेसन हमने यही कहा कि जब कुछ बड़ा कार्य हमें करना है सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना में मदद मांगना है. The second thing we learn from Nehemiah's life is that Nehemiah wants to rebuild the walls. दूसरी बात जो हम नेहमाया के जीवन से सीखते हैं कि नेहमाया दीवारों का फिर से पुनर्निर्माण करता है. And we'll read from scripture Nehemiah chapter 2. We'll read firstly verses 1 to 5 and then we'll read verse 11 and 12 and then we'll read verse 15 and 16. नेहमाया उसका दूसरा अध्याय 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे. अंतर क्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नाम महीने में जब उसके सामने दाख मधु था तब मैंने दाख मधु उठाकर राजा को दिया. इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था. तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी. तब मैं अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा सदा जीवित रहे. जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए है तो मेरा मुंह क्यों न उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा, यदि राजा को भाए और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मुझे यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं. Now we learn that Nehemiah's job was as the cupbearer to the king. और हम यहाँ देखते हैं कि नेहमाया का जो काम था वो राजा के दरबार में दाख मधु राजा को दिया करता था. And in the court of the king, nobody was allowed to be sad. और राजा के राज दरबार में किसी को भी दुख भरा चेहरा लेके मुंह उतरा नहीं रह सकते थे. It was if they did something like that, there was a chance that they could be killed.
और अगर ऐसा उतरा चेहरा लेके कोई राज दरबार में रहे तो हो सकता है कि वो अपने जीवन से हाथ धोते। But the point here is, because of what is happening inside of Nehemiah, he is sad. और यहाँ हम देखते हैं कि नेहमिया के अंदर में जो कुछ हो रहा था उसके कारण उसके चेहरा उतरा हुआ था। So he tells the king the reason of his grief in verse 3. और वचन 3 में वो राजा को उसका कारण बताता है कि उसके चेहरा उतरा हुआ है। He says, I said to the king, let the king live forever. Why should not my face be sad when the city, the place of my father's sepulchres, lies waste and its gates have been destroyed by fire? और तीसरा वचन में वो कहता है कि अतः वह अत्यंत डर गया और राजा से कहा, राजा जीवित रहे जब वह नगर जिसे मेरे पुरखाओं की कब्रें है उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए है तो मेरा मुंह क्यों न उतरे। And in verse 4, the king asks him his request. और चौथा वचन में हम देखते हैं राजा उससे पूछता है तू क्या मांगता है। The king, it says, the king said to me, for what do you make request? और राजा उससे पूछता है तू क्या मांगता है। Now, Nehemiah could have told anything to the king at that time. और हो सकता है नेहमिया राजा को कुछ भी कह सकता था उस समय। But what did he do right there? और उसने उस समय क्या किया नेहमिया ने। Let's look at that scripture. और वचन की ओर हम देखेंगे। Second part of verse 4 says, so I prayed to the God of heaven. और दूसरा भाग वचन में कहता है तब मैंने स्वर्ग की परमेश्वर से प्रार्थना करके कहा। Now this was not his prayer time. और वो उसका प्रार्थना का समय नहीं था। But he had to give a proper answer to the king. और राजा को एक सही जवाब उसको देना था। And so what does he do? He makes a spontaneous prayer so that he will give a right answer to the king. और तब उसने क्या किया, एक छोटी सी प्रार्थना किया तभी, और ताकि वो राजा को सही जवाब दे सके। And then verse 5 says, and I said to the king, if it pleases the king, and if your servant has found favor in your sight, that you send me to Judah, to the city of my fathers, sepulchres, that I may rebuild it. तो पांचवें वचन में कहता है कि यदि राजा को भाई और तू अपने दास से प्रसन्न हो तो मैं यहूदा और मेरे पुरखाओं की कब्रों के नगर को भेज ताकि मैं उसे बनाऊं। He tells the king that he wants to rebuild the walls. तो राजा को कहता है कि वो पुनर्निर्माण, दीवारों का पुनर्निर्माण करना चाहता है। Now look at that verse. और उस वचन की ओर हम देखेंगे। He does not tell the king to send somebody to go and repair the wall. और वो ये नहीं कहता है कि राजा और किसी को भेजिए ताकि वो दीवारों का पुनर्निर्माण कर सके। He could have done that. वो ये भी कर सकता था। Because the king had that authority. क्योंकि राजा का वो अधिकार था। But he does not tell this king send somebody else. तो वो राजा से ये नहीं कहता है कि महाराज आप और किसी को भेज दीजिए। But he says that he himself would like to go to rebuild the wall. तो राजा से कहता है महाराज मैं खुद वहां जाना चाहता हूँ और दीवारों का पुनर्निर्माण करना चाहता हूँ। And that is lesson number 2 for us. और वही दूसरा लेसन हम सीखते हैं। When you see what needs to be done, don't wait for somebody else to do it. जब आप देखते हैं कि कुछ परमेश्वर के काम करना है तो और किसी के लिए अपेक्षा इंतजार ना करें, खुद ही करिए। Very often we do that. और बहुत बार हम ऐसे ही करते हैं। Something has to be done. कुछ करना है। It's an important job. और ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। Maybe it's a difficult job. और हो सकता है ये बहुत डिफिकल्ट हो। And so, oh, I can't do it. Why don't we keep passing the baton to somebody else, saying, okay, why don't you do it? और उस काम को मैं नहीं कर सकता है तो हम हमेशा क्या करते, मैं नहीं करता, शायद उसको बोल वो काम वो क्यों नहीं करता वो काम। A lesson for us from Scripture is that when there is a need that has to be done,
you don't wait for somebody else to do it, you get ready to do it. और वचन से हम वही सीखते हैं, लेसन पाते हैं कि जब हम किसी काम के लिए देखते हैं जो परमेश्वर के करना है और किसी के लिए उसकी इंतजार न करे, वो खुद ही उस काम को करे। So next time there is an opportunity. और अगली बार जब ये चुनौती आपके सामने आएगा, Next time there is something that needs to be done. और अगला बार जब कुछ करना है परमेश्वर के लिए, Something may be difficult. हो सकता है वो कुछ कठिन हो, Maybe something you have not done before. और हो सकता है आपने वो उस कार्य को कभी किया नहीं हो, But here is an opportunity. और ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। Pick up that opportunity, be the one to go there and do it. और उस परिस्थिति को आप लीजिए और सबसे पहले वहां जाइए और वो काम को पूरा करिए। So when you see what needs to be done, don't wait for somebody else to do it. You do it. You get ready to do it yourself. और जब आप देखते हैं उस काम को करना है, किसी और की अपेक्षा ना करें, खुद जाके उस काम को पूरा करिए। The third thing that we notice about Nehemiah was that Nehemiah helps the poor or the needy. तीसरी बात जो हम देखते हैं कि नेहमाया जो कि जरूरतमंद या गरीबों की मदद करता है। Turn with me to Nehemiah chapter 5. और मेरे साथ नेहमाया का 5वां अध्याय की ओर हम चलेंगे। And we'll read verses 1 to 3 and then we'll read 6 and 7. और वचन 1 से 3 तक और बाद में 6 और 7 को पढ़ेंगे। नेहमाया 5वां अध्याय 1 से 3। तब लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। कितने तो कहते थे, हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि उसे खाकर जीवित रहे। और कितने कहते थे कि हम अपने अपने खेतों, दाख और बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। Now, the people were in need. ये जो लोग जरूरतमंद थे, There was lack of food. और भोजन की कमी थी, And they were having to sell whatever they owned so that they could get food. और इसके लिए उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ बेचकर ताकि वो अपने लिए कुछ भोजन की तैयारी कर सके। And this complaint reaches Nehemiah. और ये बात नेहमाया के कान तक पहुंचती है। Now Nehemiah did not say, "Hey, this is not my job. This is not my area. I'm not going to look at it." और तब नेहमाया ने ऐसे नहीं कहा, ये तो मेरा काम नहीं है, इन लोग के जरूरत को पूरा करने के लिए मैं नहीं करने वाला हूँ। He was there and he was recognized there as the leader. और वो वहाँ था नेहमाया और वो लोगों का एक लीडर करके वो जाना जाता था। Now he had a responsibility. और उसके कंधे में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, एक चुनाव था। And he had to take that responsibility to take care of that particular need at that point in time. और उसका जो जिम्मेदारी था उस समय उसके कंधे में वो लेना था और उसको सुलझाना था। So what did he do? तो उसने क्या किया? Let's look at verse 6 and 7. और 6 और 7 वचन को हम देखेंगे। It says, "I was very angry when I heard their outcry and these words. I took counsel with myself and I brought charges against the nobles and the officials. I said to them, 'You are exacting interest, each from his brother,' and I held a great assembly against them." तो यहाँ पर वचन कहता है कि 6वां 7वां में यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके मैंने रईसों और हाकिमों को घूरकर कहा, तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उसके विरुद्ध एक बड़ी सभा की। Now, Nehemiah decided to take responsibility. नेहमाया उन सब का जिम्मेदारी लेना चाहता था। He decided to do some action over there. और उस समय उस परिस्थिति में कुछ वो
करना चाहता था। So he gathered all the people together. तो उसने सारे लोगों को बुलाया Before that, he called those people who were taking money from these poor people. और उसके पहले वो उन लोगों को बुलाया जो उनसे उन गरीब लोगों से पैसा ले रहा था। And he told them that they were cheating their own brothers. और नेहम्याह ने कहा वो अपने ही भाइयों को चीटिंग कर रहा है। And we know eventually he solved that problem. और हम जानते हैं बाद में इस प्रॉब्लम का उसने सुलझा। If you come to the verse 13, और 13वां वचन में हम देखते हैं he said, I also shook out my lap and said, so may God shake out every man from his house and from his labor who does not perform this promise. So may he be shaken out and emptied. And all the assembly said, Amen, and praised the Lord. And the people did as they had promised. 13वां वचन में लिखा है, मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर और कमाई उससे छुड़ाए, और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छुचा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा आमीन और यहोवा की स्तुति की, और लोगों ने उस वचन के अनुसार काम किया। So the third lesson that I want to share with you this morning. तीसरा लेसन जो मैं सिखाना चाहता हूँ आज, When you see people in need, don't wait for somebody else to help them. जब आप किसी जरूरतमंद को देखते हो तो किसी और का इंतजार न करें उसके मदद के लिए। Very often we do that. बहुत बार हम ये करते हैं, Especially in the city of Mumbai, we do that all the time. और जबकि मुंबई शहर में हम बहुत बार ये करते हैं। We always wait for somebody else to come and help the other person. और हम हमेशा औरों की इंतजार करते हैं कि वो उस व्यक्ति का मदद करे। But from Nehemiah's example, what we learn is that no, that's not it. We need to be the ones, if somebody is in need, we need to be the ones who will go and help them. और नेहम्याह के उदाहरण से हम सीखते हैं, अगर किसी को जरूरत है तो दूसरे और किसी का इंतजार न करें, पर हम खुद जाके उसकी मदद करें। This is something that I want you to take back. और ये लेसन हम अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहे। If you see somebody in need, अगर आप किसी को जरूरतमंद को देखें, you go ahead and help that person. और आप आगे जाइए और उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। The fourth thing that we want to look at चौथी बात जो हम देखते हैं is that the wall is rebuilt. और दीवार का पुनर्निर्माण किया गया है। When in the beginning of chapter 1 we saw that Nehemiah was grieving and he was sorrowful because he heard about what was happening in Jerusalem. पहला अध्याय में हम देखते हैं कि नेहम्याह विलाप करता है, रोता है, जो कि यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों के कारण। But now when we come to this particular point, what he came out to do, he has fulfilled. और जब अब हम देखते हैं जिस कारण से वो यरूशलेम में आता है वो पूरी करता है। Now let's read scripture first. Chapter 2 verses 19 and 20. और नेहम्याह दूसरा अध्याय के 19 और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। It says, but when Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite and Geshem the Arab heard of it, they derided us and despised us and said, what is this thing that you are doing? Are you rebelling against the king? Then I replied to them, the God of heaven will make us prosper, and we his servants will arise and build, but you have no portion or right or memorial in Jerusalem. 19 और 20 वचन में दूसरा अध्याय के लिखा है, यह सुनकर हरोनी, संबलस और तोबिया नाम कर्मचारी जो अमोनी था और गेशेम नाम एक अरबी हमें ठट्टों में उड़ाने लगे और हमें तुच्छ जानकर कहने लगे, यह तुम क्या काम करते हो? क्या तुम राजा के विरुद्ध बलवा करोगे? तब मैंने उनको उत्तर दिया, देखकर उनसे कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा।
इसलिए हम उसके दास कमर बांधकर बनाएंगे, परंतु यरूशलेम में तुम्हारा ना तो कोई भाग, ना हक, ना स्मारक है। Nehemiah had opposition in what he was doing. नेहमाया के विरुद्ध में काफी लोग थे जो कार्य वो कर रहा था। What he was doing was for God. और जो कुछ भी कार्य वो कर रहा था वो परमेश्वर के लिए कर रहा था। The Lord had motivated him to do it, परमेश्वर ने उसे उत्तेजना दिया था कि उसके लिए वो कार्य करे, but he had opposition. पर उस कार्य सफल होने के लिए उसको विरुद्ध भी लोग उसके आए हैं। Now, he did not give up. पर उन सब परिस्थिति में भी वो हारा नहीं। There was a time when the opposition became so bad that as they were building the wall, they were also holding weapons in one hand. और ऐसा भी समय आता है जबकि विरोधी लोग इतने उसके सामने आ गए, तो जब वो लोग दीवार की पुनर्निर्माण कर रहे थे तो अपने हाथों में औजार पकड़ के एक हाथ में दूसरे हाथ से दीवार की पुनर्निर्माण कर रहे थे। Let's read that. और आइए उसको हम देखें। Nehemiah chapter 4 and we'll read verse 16 to 18. नेहमाया 4 अध्याय और उसका 16 से 18 वचन को हम देखेंगे। It says, from that day on, half of my servants worked on construction and half held the spears, shields, bows, and coats of mail. And the leaders stood behind all the house of Judah who were building on the wall. Those who carried burdens were laden in such a way that each with one hand labored on the work and with the other hand held his weapons. And each of the builders had his sword girded at his side while he built. The man who sounded the trumpet was beside me. नेहमाया 4 अध्याय 16 से 18। और उस दिन से मेरे आधे सेवक तो उस काम में लगे रहे और आधे बर्छियों, तलवार, धनुषों और जिलमों को धारण किए रहते थे और यहूदा के सारे घराने के पीछे हाकिम रहा करते थे। शहर पनाह के बनाने वाले और बोझ के ढोने वाले दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे और दूसरे हाथ से हथियार पकड़ते थे। और राज अपनी अपनी जांग पर तलवार लटकाए हुए बनाते थे और नरसिंगे का फूंकने वाला मेरे पास रहता था। So, even in a job like what Nehemiah was doing, there was opposition. और उस कार्य जो कि नेहमाया कर रहा था उसमें भी विरोधी लोग उसके विरुद्ध थे। Now, you and I, probably we will have more problems and more difficulties. और शायद आप और मैं मुझे और भी इस राह पर चलते हुए मुसीबत, कठिनाई का सामना करना पड़े। Today, for you and me to go out and share the gospel is not very easy. और आज आपको और मेरे लिए बाहर जाके सुसमाचार का प्रचार करना कुछ सरल नहीं है। The situation is becoming more and more difficult in our country. और हमारे देश में ये मुसीबत बढ़ी रहा है। Now, nowhere do we read in scriptures that there will be no oppositions. और हम वचन में कहीं नहीं पढ़ते कि परमेश्वर कहता है कि हमारे विरुद्ध लोग नहीं आएंगे। Nehemiah had opposition. नेहमाया के विरुद्ध में लोग आए थे। So there were time when they were building the wall and they had weapons in their hands. और उस समय जबकि वो दीवार का पुनर्निर्माण कर रहे थे, उनके हाथों में तलवार भी थी। But despite all these struggles, इन सारे मुसीबतों के बावजूद भी he was able to complete the work that God had given him. और उसने वो कार्य पूरा किया जो परमेश्वर उसको चुना था। Let's read that scripture. और वो वचन को हम देखेंगे। Nehemiah chapter 6 and we'll read verse 15 and 16. नेहमिया 6, 15 और 16 वचन को हम देखेंगे। So the wall was finished on the 25th day of the month Elul in 52 days. And when all our enemies heard of it, all the nations round about us were afraid and fell greatly in their own esteem, for they perceived that this work had been accomplished with the help of our God. एलूल महीने के 25वें दिन
दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहर पनाह बन चुकी। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। The wall was finished or ready in 52 days. पुनर्निर्माण दीवार का पुनर्निर्माण 52 दिन में खत्म हुआ। Which if you know that area, it is not possible to do that in 52 days. अगर आप उस क्षेत्र को जानते हो तो ये 52 दिन में कुछ संभव नहीं था। But Nehemiah and his the people with him, they were able to do that. That's what the scripture says in 52 days. पर नेहमाया और उसके साथियों ने 52 दिन में वो खत्म कर सका। And that verse 16 there is very important. और 16वां वचन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, It says that the people who were around them, they realized that what had happened was extraordinary. और वहाँ पर लिखा है जो लोग आजू बाजू के थे, चारों ओर थे, उन्होंने जब उस कार्य को समाप्त करते हुए देखा तो उस पर जानकर वो लोग बहुत ही परमेश्वर को धन्यवाद दिया। And what we read in that scripture is that they perceived that the work had been accomplished with the help of God. और वो जान चुके थे जो काम हुआ ये परमेश्वर की सहायता से ही हुआ है। If God was not with Nehemiah, he would have probably never been able to complete that work. अगर परमेश्वर नेहमाया के साथ नहीं रह होता तो शायद हो सकता है नेहमाया वो काम को खत्म नहीं कर चुका होता। And that is lesson number 4 that I want to leave with you. और वही चौथा लेसन हम आपके साथ में बांटना चाहते हैं। You can trust God to help you do what needs to be done. आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि जो कुछ आप करना है वो परमेश्वर आपको उसके लिए मदद करेगा। Let me repeat that. मुझे उसे फिर से कहने दीजिए। You can trust God to help you do what needs to be done. आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर जरूर मदद करेगा जो कार्य दिया है वो पूरा करने के लिए। For you and me, this is a big encouragement. और आपको के लिए और मेरे लिए सबसे बहुत उत्साहजनक बात यही है। Maybe what God is calling us to do may be difficult. जो कुछ परमेश्वर ने करने के लिए हमें बुलाया है शायद हो सकता है वो थोड़ा कठिन हो। It may be a big job. और हो सकता है बड़ा काम हो। But the scriptures are very clear that God will help us. और वचन यही कहता है कि परमेश्वर उस कार्य को संपूर्ण करने के लिए हमारा मदद करेगा। God will help us to do what He calls us to do. परमेश्वर हमें जरूर मदद करेगा जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। And for that we need to trust Him. और उसके लिए हम परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा करना है। We want to thank God for His word. हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं उसके वचन के लिए। We want to thank God for lessons that we learn from His word. हम धन्यवाद देते परमेश्वर के वचन से जो हम सीखते हैं। Today we learned 4 things from the life of Nehemiah. आज 4 बातें हम नेहमाया के जीवन से सीखते हैं। When you see something big to be done, ask God for help. जब कुछ बड़ा कार्य करना है आपको सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करिए। When you see what needs to be done, don't wait for somebody else to do it. जब कुछ करना है और के लिए आप इंतजार ना करें। When you see people in need, don't wait for somebody else to help them. जब किसी जरूरतमंद की जरूरत है तो और किसी के इंतजार में आप ना रहे पर आप उसकी मदद करें। And the last lesson we saw was that you can trust God to help you do what needs to be done. और चौथा लेसन हम सीखते हैं आप परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं कि परमेश्वर जरूर मदद करेगा जो कार्य उसने आपको पूरा करने के लिए बुलाया है। I want you to think about these things. मैं इन पर विचार करने के लिए आपको उत्तेजना करूंगा। As the worship team comes to lead us, वर्शिप गाना
गाने के लिए जैसे आते हैं, I want you to prepare your hearts. मैं चाहता कि आप अपने हृदय की ओर देखिए और अपना हृदय के प्रस्तुत करें And you prepare your hearts to pray through this song. और आराधना गीत गाते समय आप अपने मनों की तैयारी करें। जय मसीह फिर से। जय मसीह। जैसा हम वचन सुने हैं, as we heard the word of the God that we should respond to the Lord and do things whenever the Lord says us to do. तो जैसा हम गीत गाते हैं, आराधना गीत गाते हैं, कि ना हम सब मिलकर उस महान प्रभु के हम इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें और एक साथ मिलकर हम ये गीत गाएंगे। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत में। एक साथ मिलकर हम हाथ उठाकर उस महान प्रभु की हम आराधना करें इस गीत के द्वारा। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु मैं तेरे साथ हूँ। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। Let's bow our heads and pray. आइए अपने सिरों को झुका दें। 4 lessons we looked at this morning. 4 लेसन हमने आज सुबह के समय सीखा है। When you see something big to be done, ask God for help. जब कुछ बड़ी बात हम करने के लिए सोचते हैं, सबसे पहले परमेश्वर से हम सहायता मांगे। Pray that God will help you to get so close to Him that you will be able to pray and speak to Him whenever. होने दीजिए परमेश्वर आपके इतने करीब, इतना संबंध परमेश्वर से हो ताकि आप परमेश्वर से बात करिए और उससे सहायता मांगिए। When you see what needs to be done, don't wait for someone else to do it. और जब आप देखते हैं कुछ करना है और किसी के लिए इंतजार ना करें। Make yourself available to do what God tells you to do. आप उस काम के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें और परमेश्वर जो चाहता है आप वो ही करें। When you see people in need, don't wait for someone else to help them. जब आप देखते हैं किसी को जरूरतमंद कोई है तो और किसी के उस व्यक्ति को मदद करने के लिए
अपेक्षा ना करें, खुद ही उस व्यक्ति के मदद के लिए आप हाथ बढ़ाइए। And finally, that you can trust God to help you do what needs to be done. और आखिर में आप परमेश्वर पर भरोसा रख सकते हैं, जो काम के लिए उसने आपको बुलाया है उसको संपूर्ण करने के लिए। This morning, make that commitment to God. आज सुबह आप अपने आप को उस बात के लिए परमेश्वर में को भरोसा रखिए, अपने जीवन को दीजिए। Make that commitment that when you see something big that has to be done, you will go and ask God to help you. और उसके लिए आप अपने आप को तैयार करें। अगर कुछ बड़ी बात करने के लिए परमेश्वर आपको बुलाता है, उसके लिए आप परमेश्वर के पास जाइए ताकि उसकी सहायता मांगे। Make a commitment that when you see that there is something that needs to be done, you will not wait for someone else, but you yourself will do it. और अपना समर्पण करिए ताकि अगर कुछ किसी को कुछ जरूरत है, जरूरतमंद को देखकर आप और किसी के लिए इंतजार ना करेंगे, पर अपने आप को उस काम के लिए प्रस्तुत करेंगे। When you see somebody in need, make a commitment that you will not wait for somebody else, but you yourself will help them in their need. और उस जरूरतमंद को मदद करने के लिए किसी और के इंतजार नहीं, पर खुद जाके उसकी मदद आप करेंगे। And finally, that make a commitment that you will trust God, that whatever God tells you to do, He will complete it the way He has told you. और चौथी बात, जो कुछ बड़े काम के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस काम को परिपूर्ण करने के लिए परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, इसका विश्वास आप करना है। Make that commitment this morning. और इन बातों की आप अपने उस समर्पण करना है। And tell God, yes, I want to do that. और परमेश्वर को कहिए, हाँ प्रभु, इन बातों को मैं करना चाहूँगा। So in these moments of silence, you tell that to God. और इस एक क्षण शांतता में आप परमेश्वर से बात करिए। Our Father God, we thank you for your word. पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। We thank you for the example of Nehemiah. धन्यवाद देते हैं नेहमाया के जीवन के जो उदाहरण आपने हमारे जीवन में दिया है। Help us, Lord, that when we see something big that needs to be done, that we will call to you for help. होने दीजिए जब आप हमें कोई बड़ी काम के लिए हमें जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो आपकी मदद हम हमेशा मांगे। When we see something that needs to be done, help us, Lord, not to wait for someone else, but for ourselves to be ready to do it. अगर कुछ काम के लिए हम देखते हैं जरूरत है, तो और किसी के लिए हम अपेक्षा ना करें, खुद ही उस काम के लिए हाथ बढ़ाएं। When we see some people in need, that we will not wait for somebody else to come and help them, but we ourselves will go and do it. जब हम जरूरतमंद को जरूरत के लिए देखते हैं, तो और किसी को उनको मदद के लिए ना रास्ता देखे, पर खुद जाके उनकी मदद करें। And finally, that we will trust God, that He will help us to do what He chooses us to do. और हम आप पर भरोसा रखें, तो जिस काम के लिए आपने हमें बुलाया है, वो करने के लिए आप हमारी जरूर मदद करेंगे। We commit ourselves into your hands. हम अपने आप को, हमारा जीवन आपके हाथों में देते हैं। As we make this commitment, we ask that you would take us, Lord. और जब हम हमारे ये बातें हम स्वीकार करते थे, हम प्रार्थना करते, पिता हमारे जीवन को आप लीजिए। You make us and use us the way you want us. और हमारे जीवन को लीजिए और ऐसा बनाइए और उसका आप उपयोग करिए। Thank you for your word again this morning. धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। Thank you for your Spirit who has taught us this morning. धन्यवाद देते आपके पवित्र आत्मा जो हमें आज सिखाया। May your presence be with us as we go out into the world and do what you call us to. और आपकी उपस्थिति हमारे साथ हमेशा हमेशा रहे, जो इस संसार में जाकर जिसके लिए आपने हमें बुलाया है वो करने के लिए। Thank you, Lord, for hearing and answering our prayers. धन्यवाद देते हमारे प्रार्थनाओं का आपने सुना है और उसका उत्तर आपने दिया है। Because we pray all this in the most worthy name of our Lord and Savior Jesus. क्योंकि ये सब कुछ हम उस महान परमेश्वर के नाम जो कि यीशु मसीह है। Amen. आमीन। God bless you all. प्रभु आपको आशीष दे। And as you go into the world, go with the belief that God will use you for His glory and for His honor. और जैसे आप संसार में जाते हैं, आप विश्वास करिए कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपके साथ है और जिस काम के लिए उसने आपको बुलाया है
उसकी परिपूर्ण करने के लिए वो आपके साथ है। May God be with you right through this month. परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ रहे ये महीना भर। Amen. आमीन।